हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज लोहित. आई टीच मैथमेटिक्स here at Vedantu Olympiad School and I'm back with your pre-RMO flashback session 14. In this series हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर pre-RMO के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. So in this session we are going to do the next 3 questions of pre-RMO 2018. We have covered first 9 questions of pre-RMO 2018. So in today's session we'll be covering question number 10, 11th and 12th of pre-RMO 2018. Okay, so I'll ask you guys again कि आप copy, notebook and pen keep it with you so that आप साथ साथ में solve कर सको मेरे साथ. Okay, and also before starting मैं एक बात कहना चाहूँगा कि if any of you guys have done pre-RMO or RMO in the previous year can enroll in our courses in this year, okay, for free. Okay, what you have to do for that is you have to send email to this email id lohit.jindal@vedantu.com, okay, along with the proof of your qualification in pre-RMO or RMO so that we can enroll you in the appropriate course, okay, and batch if you want to prepare with us. And other than that, any students who are very much interested in doing mathematics olympiad preparation for it can log on to our site olympiad.vedantu.com, give the admission test that is called volt, the admission test, okay, and other details you will find on the site, and you can give the test, and if you are getting insufficient marks then you will be able to enroll in our courses. Okay, all right. Okay guys, so let's start the session now. Okay, so let's see the first question of today's session, that is 10th question of pre-RMO 2018. So let's read the question. In a triangle ABC, the median from B to CA is perpendicular to the median from C to AB. If the median from A to BC is 30, we have to determine the value of BC square plus AC square plus AB square upon 100. Okay, तो guys मैंने पहले से थोड़ी डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है. So let me name it ABC. Okay, the median through B and the median through C are perpendicular. Okay, so these two are perpendicular. This is 90 and this angle is also 90. So let's name it AD, BE and CF. Okay, so guys AD की जो length है, that is this length is 30, right? So as we know, the median, that is the point G, divides the medians in the ratio of 2:1, right? So can I say AG upon GD is 2:1, but the complete length of AD is 30. So automatically what we get to know, AG will be 20 and GD will be 10, right? From the ratio 2:1 you can get that 2:1 में है and the total length is 30, so this will be AG is 20 and GD is 10. Let me write it here. So guys इसको solve करने के लिए ना we will apply the Apollonius theorem. Okay, let me write it here. Apollonius theorem. Okay, this theorem actually comprises of squares of the sides of the triangle and the median. Okay, for this triangle this theorem states AB square plus AC square is equal to twice of the length of the median ka square AD square plus half of the third side, that is BC ka half. It could be either BD or DC because both are equal na, because this is median AD, so you can write it as BD square. So that is the theorem. Okay, and this is the statement it states. So this is very basic. It's generally derived by applying Pythagoras theorem. Okay, so you can find it very easily on Google and all. So we'll not go in very detail for this. It's theorem. उसका proof नहीं करेंगे. So not at all difficult. Okay, you can go out on Google and check it out. Very easy. Okay, so we'll directly use this. This will make this question very easy. So guys, इसके बाद one more theorem we need to apply. Okay, one very good property. As you can see in this triangle BGC. Okay, GD is the median and angle G is 90. So theorem क्या होती है, in a right angle triangle if you draw the median through the right angle then that median, that is the length GD, is equal to half of the hypotenuse, right? So hypotenuse यहाँ पे क्या होगा, BC, which says, and that theorem is that GD will be equal to BD equal to DC, right? From that thing I get to know that BD is 10 and also DC is 10, right? So that is from that property. I hope everybody knows that, right? In a right angle triangle
if you draw the median through the right angle, okay, then that median's length is equal to half of the hypotenuse. Okay, so all these three sides are equal now. So guys, let's apply this theorem, Polonius theorem now. So AB square plus AC square is equal to twice of length of AD is 30 square plus BD as we know now is 10 plus 10 square. So let's see this. So twice of 900 plus 100, right? So we get this value as 1000 and that is 2000. So AB square plus AC square we have found out to be 2000, right? So guys, we already know the value of AC square plus AB square, है ना? We found the value of their sum. Now the बात करें अगर BC की भी length हमने find कर लिया already. That is 10 plus 10, that is 20, right? So length of BC will be 20. So let's find this expression then. AB square plus BC square plus AC square upon 100, है ना? तो AB square plus AC square is 2000 plus BC square that is 20 square upon 100. So as you can see ऊपर क्या आएगा 2000 plus 400 2400 upon 100. So answer will be 24. So that will be the answer of this question. तो guys बहुत easy है, but yes, if you know this theorem it becomes very easy. Otherwise it can be a little lengthy, but even then you can solve. You just have to apply Pythagoras theorem in different triangles, okay, and use the properties of centroid. So the use of this theorem makes the question very easy. So guys, इसका आप proof देख सकते हो बच्चों, Google पे कर सकते हो. It is very easy. Okay, all right. Okay guys, I hope सबको clear है ये मैं question. So let's move on to the next question. ठीक है, you can see the answer was 24, right? Okay, so let's see the next question. That is the 11th question of pre-RMO 2018. बच्चों अब इसमें क्या देखेंगे हम? There are several teacups in the kitchen, some with the handles and others without handles. ठीक है, तो कुछ के handles हैं, कुछ के नहीं है. The number of ways of selecting 2 cups without a handle and 3 with a handle is exactly 1200. What is the maximum possible number of cups in the kitchen? तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स लेट करने पड़ेंगे. लेट्स से विद हैंडल्स लेट्स से A कप्स हैं, एंड सो विदाउट हैंडल्स लेट्स से B हैं. विदाउट हैंडल 2 सेलेक्ट करने हैं, दैट विल बी BC2 इनटू 3 विद हैंडल. विद हैंडल A हैं तो AC3. दिस शुड बी इक्वल टू 1200, है ना? तो इसके वैल्यू पुट कर देते हैं. BC2 क्या बन जाएगा हमारे पास? B फैक्टोरियल अपॉन B माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू AC3 क्या आएगा? A फैक्टोरियल अपॉन A माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1200. तो बच्चों इसको आप कैंसिल कर सकते हो. B माइनस 2 फैक्टोरियल विल कैंसिल B फैक्टोरियल, है ना? एंड A माइनस 3 फैक्टोरियल विल कैंसिल A फैक्टोरियल. लेट मी राइट इट इन द नेक्स्ट स्टेप. तो ये इसको जब कैंसिल करेगा विल बी लेफ्ट विद B इंटू B माइनस 1, राइट? सिमिलरली A माइनस 3 विल कैंसिल A फैक्टोरियल, है ना? तो लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्टेप. सो दिस विल गिव मी B इंटू B माइनस 1, and the second bracket will give me A minus 1 into A minus 2, है ना? A minus 3 will get cancelled and इस 2 factorial और 3 factorial को हम right side ले जाएंगे, which will give us 1200 into 2 into 6. तो ये आ जाएगा 14400, and you can actually prime factorize it. So let's write it in this way: B into B minus 1 into A minus 1 into A minus 2 equal to 2 power 6, 3 square and 5 square, है ना? आप देख सकते हो 144 is 12 square, so 12 is 2 square into 3, ठीक है? That is 2 power 4 into 3 का स्क्वायर बन जाएगा, and from the double zeros we get 2 square and 5 square. So this is the prime factorization of this. तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगती है. The thing is यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स हैं B इंटू B माइनस 1, एंड यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं A माइनस 1 और A माइनस 2, और यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट लिखा हुआ है 2, 3 और 5 की टर्म्स में, 2, 3 और 5 की डिफरेंट पावर्स में, है ना? सो व्हाट वी कैन से इज आई कैन नॉट पुट A एज 8, है ना? बिकॉज अगर मैं A को 8 पुट कर दूंगा इट विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 7 तो राइट साइड पे कभी आ ही नहीं सकता, राइट? नहीं है हमारे पास, है ना? सो इन दिस केस वी हैव टू लेट सम वैल्यूज ऑफ A एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि B की कोई वैल्यू बन पाती है या नहीं बन पाती है.
तो गाइस सबसे छोटा वैल्यू ले सकते हैं. लेट्स से a could be these are three consecutive numbers. Let's say these consecutive numbers जो हैं ये तीन है ना, a minus 1 a minus 2, it could be either 2 3 and 4, right? मतलब a को अगर हम 4 डाल दें, let's say first case if a is equal to 4, then what happens? This is 4 into 3 into 2, right? So b into b minus 1 will be equal to 2 power 6 3 square into 5 square. So you can see here 2 4 3 cancel हो जाएगा, you'll get b into b minus 1 equal to 3 powers of 2 are gone, so 2 cube, एक 3 बचेगा और एक 5 स्क्वायर, है ना. तो आप देख सकते हो क्या कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसा हम ढूंढ सकते हैं इसमें से विच आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. एंड इसमें एक और बात का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो आप, b into b minus 1, so one of the number will be even then the other one will be odd, है ना. तो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 और 4 into 5 स्क्वायर का कुछ मैं कंबाइन कर दूं. सो 2 क्यूब should be surely in the one of the number, right? So इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? So either 2 cube into 3 is 24, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं ये देख पाऊंगा 2 cube into 3 दो कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, तो 8 into 3 either it could be 24 into 25. इसका मतलब b क्या होना चाहिए? a equal to 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग b equal to 25 होना पड़ेगा. So guys that is one of the case. ठीक है, तो अब आगे ऐसी सेकंड केस देखते हैं. ठीक है, let's see on the next slide. So second case, let's put a equal to, अब देखो तीन कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, लास्ट टाइम हमने 4 पुट किया था, so 4 3 2 मिले थे हमें. राइट नाउ आई कैन ऑल्सो पुट a as 5, है ना. तो 5 4 3 मिल जाएंगे. so 5 into 4 into 3 into b minus 1 equal to 2 power 6 3 square and 5 square, राइट. अब दोबारा देखते हैं, b into b minus 1 will give me 2 की 2 पावर चली जाएंगी, so 2 power 4 into 3 की एक पावर बचेगी और 5 की एक पावर बचेगी. बच्चों अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, so two consecutive numbers again even and odd होना पड़ेगा. So you can see 16 2 power 4 is 16 and this is 15, that is 16 into 15 बन रखा है. So that will give me corresponding to a equal to 5, b will be equal to 16. So that is one of the case, है ना. So next let's see the third case. बच्चों मैं a को 6 डाल सकता हूँ, है ना. Let's put a equal to 6. So the value will be 6 into 5 into 4 into b minus 1 equal to 2 power 6 3 square and 5 square. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे b into b minus 1 will be 6 is total 2 क्यूब बचेगा, 4 में से और 6 में से एक 3 2 चले जाएंगे, 1 3 will be consumed in 6 and 1 5, so 2 क्यूब 3 and 5. तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन देख सकते हो. अब यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन आ नहीं पाएगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का, है ना. 2 क्यूब तो आना ही चाहिए एक नंबर के अंदर, 8 तो आ ही गया. सो 8 into 3 is 24 into 5 भी नहीं बन पाएगा, 8 into 5 40 और 3 बचेगा, वो भी नहीं हो पाएगा. सो अकेला अगर 8 छोड़ भी दें तो वो 15 हो जाएगा. सो दिस केस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है, राइट. सो बच्चों अगर इसके आगे देखोगे a equal to 6 के बाद 7 आ नहीं सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 7 आ जाएगा इनमें से, और राइट साइड पे अपने पास 7 है नहीं, राइट. सो लाइक दिस केसेस कम होते जाएंगे, सो अकॉर्डिंगली b छोटा होता जाएगा, राइट. अब मैं अगर a इतना बड़ा कर दूंगा तो b छोटा हो जाएगा. एंड और वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि जब a 4 आएगा तो b अपना 10 आ रहा था, a 4 आ रहा था तो b 29 आ रहा था, 25 आ रहा था, राइट. सो अगर मैं a को और बड़ा करूंगा, a को थोड़ा 10 भी कर लूंगा तो b और ज्यादा छोटा हो जाएगा, 16 से भी छोटा हो जाएगा, राइट. a 5 के अंदर ही 16 आ रहा था, सो वी डोंट नीड टू गो एनी फर्दर. ठीक है, वैसे भी आगे चल के आप 9 नहीं ले सकते हो तो 10 ले सकोगे, 10 9 8, तो वहां पे भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो एज सच, सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a and b that we have got is a equal to 4 and b equal to 25, that is one set. Then a equal to 5, b equal to 16, ठीक है, and so on. So actually these two will be the values which will get, आगे चल के और वैल्यूज नहीं आ पाएंगे. So बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? We have to find the maximum possible number of cups, that is a plus b हमें maximum find करना है, a plus b का max. So as you can see from the value, 16 plus 5 is 21 and 25 plus 4 is 29. So that will be 29. Considering this case, this scenario, the value will be 29. तो 29 cups होंगे, जिसमें से अगर 25 होंगे without handles, 4 will be with handles, and accordingly हमारा आंसर 1200 आ जाएगा. Okay.
सो द गाइस द आंसर विल बी 29 कप्स. ठीक है, ऑलराइट. आई होप सबको क्लियर है. आप नो प्रॉब्लम, अगर आपको डाउट लग रहा है कि हाँ हमने आगे केसेस क्यों नहीं लिए, यू कैन ट्राई इट आउट. ठीक है, आप देखोगे तो वैल्यूज नहीं आएंगे उतने. ठीक है, छोटा होता जाएगा उतना. a जितना बढ़ेगा b उससे ज्यादा छोटा हो जाएगा. सो द सम ऑफ a प्लस b विल बी एक्चुअली गेटिंग स्मॉलर ओनली. ओके, एंड ऑल्सो जैसे थर्ड केस की तरह काफी बार तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आ भी नहीं पाएगा. तो बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन, 12th क्वेश्चन ऑफ प्री-आरएमओ 2018. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. डिटरमिन द नंबर ऑफ 8 टपल्स. ओके, 8 टपल्स का मीनिंग है अ सेट ऑफ 8 डिजिट्स, 8 नंबर्स, जहां पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और सो ऑन अप टू 8 नंबर्स है ना, सच दैट E1 E2 E3 एप्सिलॉन 8 सबके सब जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली दे आर आइदर 1 और -1 है ना, दे बिलोंग टू सेट ऑफ -1 एंड 1. तो उनकी वैल्यू 1 या -1 ही हो सकती है. सो एंड उन सबका सम जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3. आई थिंक बच्चों यहाँ पे कोई गलती है. एक्चुअली द करेक्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे 2 आएगा. ओके, लेट मी करेक्ट इट. तो वी हैव टू प्रूव एप्सिलॉन 1 प्लस 2 एप्सिलॉन 2 प्लस 3 एप्सिलॉन 3 प्लस 4 एप्सिलॉन 4, 5 एप्सिलॉन 5, 6 एप्सिलॉन 6, 7 एप्सिलॉन 7 प्लस 8 एप्सिलॉन 8. बच्चों एक्चुअली इंस्टेड ऑफ दिस शुड बी द एक्सप्रेशन. ओके, इसको हमें चेक करना है एज अ मल्टीपल ऑफ 3. देयर इज सम मिस्टेक ऑन आवर एंड, सॉरी फॉर दैट. ओके, तो इन सब का सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. उसके लिए हमें 8 टपल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है. ओके, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करना है. तो बच्चों इसमें से एक चीज देखो, 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो ये टर्म और ये टर्म तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना, ये दोनों तो हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 3 है ना. एंड अगर मैं इनको कंसिडर करता हूं 2 एप्सिलॉन 2, देन 5 एप्सिलॉन 5 एंड 8 एप्सिलॉन 8. इसमें क्या है, द रिमाइंडर इज गेटिंग 2. मतलब अगर उनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे हम 3 से, द रिमाइंडर विल बी 2 है ना. सो लेट मी राइट इट इन दिस वे. इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन 1 प्लस, अब आप एक बात सोचो, 4 एप्सिलॉन 4 है जो, कैन आई राइट इट इन दिस फॉर्म, 3 एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन 4 है ना. तो 3 तो निकाल सकता हूं ना, दिस विल बी डिविजिबल बाय 3. अपना एक्सप्रेशन थोड़ा इजी कर लेंगे. सो गाइस हम कैसे लिख पाएंगे बच्चों, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 4, ये वाला एप्सिलॉन 4 रख लेंगे, ये 3 वाला 3 के साथ कंबाइन हो जाएगा है ना. सिमिलरली 7 वाले में से 7 वाले को विल राइट 6 एप्सिलॉन 7 प्लस एप्सिलॉन 7. तो एक एप्सिलॉन 7 बचेगा हमारे पास. तो ये 3 का एक सेट बन जाएगा हमारे पास. ओके, जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा था 3 पे डिवाइड करने पे. प्लस ऐसे ही 2 वाले कौन से होंगे, 2 टाइम्स एप्सिलॉन 2 प्लस सिमिलरली 5 एप्सिलॉन 5 को भी लिख लेंगे 3 प्लस 2 है ना, प्लस 2 एप्सिलॉन 5 प्लस सिमिलरली 8 को लिख लेंगे 2 एप्सिलॉन 8. तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 3 टाइम्स अंदर क्या क्या आएगा, एप्सिलॉन 3 प्लस 2 एप्सिलॉन 6, एप्सिलॉन 4 भी आ जाएगा प्लस 2 एप्सिलॉन 7 आ जाएगा. राइट, हम इनको ब्रेक कर लेंगे. 3 और 6 के अलावा 4, 7, 5 और 8. आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा है ना, 2 ऑलरेडी बाहर कॉमन लिया हुआ हमने. तो राइट, प्लस 2 एप्सिलॉन 8 भी आ जाएगा. 3, 6, 4 एंड एप्सिलॉन 5 भी आएगा यहाँ पे. यस, 2 एप्सिलॉन 5 भी आ जाएगा. तो बच्चों बात ये है इन दी एंड कि ये वाला पूरे के पूरे को मैं p लिख सकता हूँ. राइट, सो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3p कंसिडरिंग दिस 3 ऑल्सो. तो ये टर्म तो 3 से डिविजिबल है ही है ना, तो उसके बारे में तो सोचने की हमें जरूरत है ही नहीं. दिस इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 3 वट एवर मे बी द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन है ना. तो बच्चों अब इसको भी क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस 2 एज 3 टाइम्स -1 है ना. अगर मैं इसको ऐसा रिप्लेस कर दूंगा, व्हाट विल आई गेट, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन 7, माइनस को पहले लिख रहा हूं, सो माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 5 माइनस एप्सिलॉन 8. तो जो 3 टाइम्स बनेगा हमारे पास वो अगेन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. लेट मी राइट इट एज 3 टाइम्स k, इस पूरे को अगर मैं k लिख लेता हूं, प्लस 3p. तो अगेन आई कैन राइट होल ऑफ दिस एक्सप्रेशन एज 3q, लेट से कुछ भी लिख सकते हैं. सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना. तो दैट इज द पॉइंट. तो बच्चों अब हम अगर देखें इसको कंबाइन करने का एक वे बना लेते हैं. सो लेट्स राइट इट इन दिस फॉर्म, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस
एप्सिलॉन 4 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन 7 माइनस एप्सिलॉन 8। तो बच्चों हमको इन सब वैल्यूज के बारे में सोचना है, प्लस बाकी 3q। तो अगर आप देख रहे हो इसमें से एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 6 आर नॉट देयर, तो एक्चुअली इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन 6 को तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। सो बोथ ऑफ देम विल हैव 2 ऑप्शंस ईच, कि उनको कुछ भी डालूंगा 3 का मल्टीपल आएगा ही, राइट। तो बच्चों अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 4 माइनस एप्सिलॉन 5 एंड एप्सिलॉन 7 माइनस एप्सिलॉन 8। तो बच्चों एक काम करता हूँ, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ टू मेक इट अ लिटिल ईजियर। तो a b लिख देता हूँ, इसको c लिख देता हूँ। तो बच्चों जो सोचने वाली बात है वो ये है कि a b और c की जो वैल्यूज हैं, है ना, एज सच पॉसिबल हैं क्या, क्या क्या आ सकती हैं, बिकॉज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सबकी वैल्यूज 1 या -1 ही हो सकती है। सो आइदर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 कुड बी आइदर -2। कितनी बार होगा -2, कैसे होगा, व्हेन एप्सिलॉन 1 इज -1 एंड एप्सिलॉन 2 इज 1, राइट। तो -1 बन के -2 हो सकता है। तो एक ही पर्टिकुलर केस में होगा व्हेन द एप्सिलॉन 1 वैल्यू इज -1 एंड एप्सिलॉन 2 वैल्यू 1 होगी, तभी होगा, है ना। देन इट कुड आल्सो बी 2 आल्सो, जब एप्सिलॉन 1 1 हो और एप्सिलॉन 2 -1 हो जाए, तो ओवरऑल इट विल बिकम 1 माइनस -1, राइट। तो 2 का भी एक ही केस है, जब फर्स्ट पार्ट 1 हो जाए, सेकंड टर्म -1 हो जाए। एंड गाइस थर्ड टर्म इज 0। 0 कब होगा, व्हेन बोथ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर इक्वल, दैट इज या तो दोनों 1 1 हो जाए या फिर दोनों -1 हो जाए। तो 0 के बारे में ये खासियत है, दो नंबर ऑफ वेज लिख देता हूं, ये कितनी बार होता है, एक बार ही हो सकता है, इन ओनली वन पर्टिकुलर केस। 2 इज ऑल्सो इन वन पर्टिकुलर केस, बट 0 कितनी बार होता है, इन 2 केसेस, राइट। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, सो बच्चों देखते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 3q का जो सम है, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3q, तो हमें इसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। तो 3q का तो सोचना ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3। सो व्हाट डिफरेंट वैल्यूज वी कैन थिंक अबाउट, जब a b c जो हमारे हैं उनकी वैल्यू 2 0 या -2 ही हो सकती है जब। तो बच्चों देखते हैं। सो देखो फर्स्ट केस है ना, या तो a इक्वल टू b इक्वल टू c 0 हो जाए, सारे ही 0 हो जाए, और 3 की तो 3 का मल्टीपल है ही, तो ओवरऑल द एक्सप्रेशन विल बी मल्टीपल ऑफ 3। बट a इक्वल टू b इक्वल टू c तीनों 0 कब होते हैं, हमने अभी देखा था, दे बिकम 0 ईच ऑफ देम। a 0 कब होगा, देयर आर 2 केसेस। b 0 कितनी बार हो सकता है, हाउ मेनी वेज आर देयर, 2 वेज। c भी 0 होना चाहिए, अगेन 2 वेज। सो गाइस टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 into 2 into 2, है ना। ईच ऑफ abc हैज 2 वेज टू बिकम 0, और तीनों 0 होने चाहिए, तो इट विल बिकम 8 वेज, ठीक है। सो देयर विल बी 8 वेज फॉर दिस। सो नाउ इट कैन बी दैट ऑल दीज ऑफ abc कुड आइदर बी 2 और -2, है ना, या तो तीनों ही 2 हो जाए या फिर तीनों ही -2 हो जाए। अब उसके कितने वेज हैं, देखो कितने आएंगे, अगर तीनों को 2 होना है तो देयर इज 1 वे फॉर दैट, है ना, और तीनों को अगर 2 होना है, -2 होना है, उसके कितने वेज हैं, +1 अगेन, है ना। तो इसके कितने वेज हो गए, 2 वेज, राइट। तो थोड़ा सोचो ध्यान से, तीनों को 2 होना है, 2 कैसे हो सकता है, इन ईच केस उनकी पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है ना। नाउ कमिंग टू थर्ड केस, ये होना पड़ेगा कि a इक्वल टू, सोचो यहाँ पर थर्ड केस क्या आएगा, कि एक की वैल्यू 2 हो रही हो, एनी वन ऑफ देम, है ना, एंड लेट्स से दूसरे की वैल्यू -2 हो रही हो और तीसरे की 0 हो रही हो। तो इसमें हमें बड़े ध्यान से काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि a 0 हो, b 2 हो, c -2 हो। तो बेसिकली देयर इज अरेंजमेंट, है ना। 0 2 और -2 का अरेंजमेंट कैसे आएगा, इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल वेज, है ना, कि कौन सा 0 होना है, कौन सा -2 और कौन सा 2। इट इज लाइक अरेंजिंग 2 -2 एंड 0 बिटवीन a b एंड c। सो 3 फैक्टोरियल वेज हो गए उसके, मल्टीप्लाई बाय, अब जो भी वैल्यू 2 होगी उसके कितने वेज हैं, 1 वे। जिसकी भी वैल्यू -2 होगी उसका भी 1 वे। जिसकी लेकिन वैल्यू 0 नहीं है उसके पास कितने वेज हैं, दैट इज 2, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो 0 वाला केस वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस 3 फैक्टोरियल इज 6 into 2 बिकम्स 12 वेज, है ना। तो अच्छा टोटल कितने वेज हो गए, 8 + 2 + 12 विल बी 22 वेज, है ना। तो 22 वेज हैं फॉर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 4, एप्सिलॉन 5, एप्सिलॉन 7 एंड एप्सिलॉन 5 एंड एप्सिलॉन 8। तो ये 6 वाली जो ये 6 एप्सिलॉन की वैल्यूज हैं उनके लिए हमारे पास 22 वेज हैं। फॉर द रिमेनिंग एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 6 जो हमने डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट डजंट मैटर एट ऑल, है ना। सो टोटल
वेज कितने होंगे. सो 22 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं फॉर द 6 वेरिएबल्स आउट ऑफ 8. देन जो एप्सिलॉन 3 है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. इट कुड बी आइदर 1 और -2, 1, राइट. तो दो ऑप्शंस हैं इनटू 2 फॉर दैट. एंड फॉर एप्सिलॉन 6 अगेन ऑलरेडी 3 क्यू के अंदर है बट द वैल्यू विल मैटर, है ना. सो अगेन एप्सिलॉन 6 के लिए भी 2 वेज, 1 और -1. सो बच्चों टोटल कितना आंसर हो गया? 22 into 2, 44 into 2 is 88. तो बच्चों द आंसर इज 88 number of tuples, 8 tuples होंगे which will satisfy the given criteria. Again, sorry for this, the question should be epsilon 1 plus 2 epsilon 2 as I mentioned on the previous slide. Okay, so the answer will be 88. Okay, it was a very good question, interesting question. इसमें गलती होने के बहुत चांसेस हैं, तो ध्यान से उसको समझ के पढ़ के करना है. Okay, so it's very important in this question, okay, that you read the question carefully and make each of the questions, each of the cases very carefully. Okay, I hope आप सबको ये clear है अभी. Okay, I hope you understood all the 3 questions. So again बच्चों, as I've told you already, our vision is to bring gold for India at international level. So that is why we are pouring our heart and soul for this. ठीक है, and we want anyone who is interested in this very very much and very enthusiastic about Maths Olympiad should join us, and I have already shared the details for it at the start of the session. You can see there. So all the best guys. So other than that, thank you all. I hope you enjoyed the session and understood all the questions. I felt very good. Okay, so take care guys. Okay, bye bye, take care, thank you.